Hello everyone, welcome to the channel. So this is going to be the second class in which we are going to cover the Spectrum Modern India MCQs. Now the total number of MCQs are 700 and हमारी first class में we have dealt from question number 1 to question number 30. Advent of Europeans we have already completed. If you haven't watched that lecture, you can go to the video section of the channel and you can watch the first video there. It has been uploaded yesterday only. Now today we are going to start with the second chapter or the next chapter, that is the India on eve of British conquest. Okay, now our question number 31 is who invaded Delhi in 1757 and captured the history. Now before starting I would like to tell कि अगर आप revision कर रहे हो spectrum का, so you can download this 700 questions PDF from the pinned comments. The link will be available there. Okay, now the question is who invaded Delhi in 1757 and captured the city. Now, before knowing this, let me give you a brief idea about what happened, what was the condition of India when the British fully took over the control of India. Now, the reign of Aurangzeb, as we know, was from 1658 to 1707. Now, in 1707, Aurangzeb died. Now, what happened after Aurangzeb died? Now there were basically two sets of problems that India was facing. First one was the external factors, the external challenges before the Mughal Empire, and the second one were the internal challenges. Now ये जो question number 31 है, this is the part of the external challenge that was there in front of the Mughals. Now what happened in first, अगर मैं पहले एक एग्जाम्पल की बात करूं तो 1739 में what happened was Nadir Shah attacked India in 1757. Now who was the Mughal emperor? Mughal emperor at that time was Muhammad Shah Rangila. Now Nadir Shah, when he attacked, he took away the Kohinoor diamond, which is till date it is present in United Kingdom only. Also he took the peacock throne. Now this was done by Nadir Shah. Okay. Now after Nadir Shah, what happened in 1757 was the attack of Ahmad Shah Abdali. Now Ahmad Shah Abdali attacked in 1757 and ultimately 1761 में we know that third battle of Panipat हुआ था, in which ultimately he won. Abdali defeated the Marathas and the Maratha army was led by Hemu. Now talking about the internal challenges. What were the internal challenges? So internal challenges में था सबसे important weak set of rulers. Now may it be many of the rulers who ruled till 1857 जहाँ पे बहादुर शाह जफर was the last Mughal emperor of India. ठीक है. So there was a weak set of rulers. So this is what I wanted to tell you. Now let's straight away move to the question. Who invaded Delhi in 1757 and captured the city? It was Ahmad Shah Abdali. Abdali's invasion destabilized Mughal control and led to the third battle of Panipat in 1761, and it was fought between Marathas and Ahmad Shah Abdali, in which Marathas ultimately lost. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. Let's now move to the next question. Now, which battle did Ahmad Shah Abdali win in 1761? He won the third battle of Panipat and it marked the decline of Maratha supremacy in North India. Next question देखते हैं. Now, next is who gave the firmans to British in 1717 granting the trade privileges. Now, these imperial firmans were given by the Farooq Siyar. Now what else did Farooq Siyar did? Farooq Siyar ने और क्या क्या किया था? अब फारूक सियार के बारे में मैं बात करूं, so he took a certain kinds of step. The first one was abolition of jizya. Now this tax was imposed on the non-Islamic. Also he is known to abolish the pilgrimage tax. पिलग्रिमेज टैक्स वॉज ऑल्सो अबॉलिश्ड बाई फारूक सियार. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. एंड अल्टीमेटली 1717 में ही गेव द फरमान टू द ब्रिटिशर्स
एंड ऑल्सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि दिस फारुखसियार वॉज किल्ड बाई सैयद ब्रदर्स. These were killed by Sayyid brothers. फारुखसियार was killed by Sayyid brother. तो इससे आपको ये भी याद रखना है कि फारुखसियार was the first Mughal emperor who was killed by the nobles. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is who was blinded and killed by the Sayyid brothers in 1719? It was Farrukhsiyar. I have already told you. Next is, what title was given to Muhammad Shah by Kafi Khan? Now, अभी मैंने आपको बताया it was during the tenure of Muhammad Shah Rangila that नादिर शाह अटैक्ड. नादिर शाह ने अटैक किया था इन द ईयर 1739. ठीक है, सो दिस मोहम्मद शाह का टाइटल किसने दिया था? मोहम्मद शाह को कफ़ी खान ने क्या टाइटल दिया था? सो ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ रंगीला. ठीक है, दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज मोहम्मद शाह रंगीला बिकॉज ही लेड अ लग्जूरियस एंड इंडल्जेंट लाइफ स्टाइल. ओके, अंडरस्टूड. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who became the viceroy of Deccan and founded the Hyderabad? Now हैदराबाद को किसने फाउंड किया? नाउ अगर अभी मैं बात करूं आपसे, नाउ मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था तो देयर वेयर 3 इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे. सबसे पहला तो इसी को देख लेते हैं, दैट इज हैदराबाद. हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क. ठीक है, नाउ अवध एक और इंडिपेंडेंट स्टेट था विच वॉज फाउंडेड बाय बुरहान उल मुल्क. एंड द थर्ड Bengal as an independent state was established by Murshid Quli Khan. So question में हमें यही पूछा है, who became the viceroy of Deccan and founded the Hyderabad in 1724? It was founded by Nizam ul Mulk. ठीक है, he defeated Mubarak Khan at the Battle of Shakarkheda. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी. Now next is who founded the independent state of Awadh? Likewise I told you, सादत खान का दूसरा नाम क्या था? इट वॉज बुरहान उल मुल्क. ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं निज़ाम उल मुल्क की, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, द अदर नेम वॉज किलिच खान. ठीक है, सो ये नेम्स भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, सो यू हैव टू नो दीज नेम्स ऑल्सो. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, साथ में वी आर ऑल्सो डीलिंग विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट इज विच नवाब ऑफ बंगाल वॉज किल्ड एट घेरिया इन 1740? नाउ अभी बंगाल के बारे में बात आ गई. मैंने आपको बता दिया कि दिस इंडिपेंडेंट स्टेट वॉज फाउंड बाई मुर्शीद कुली खान. ठीक है, अब मुर्शीद कुली खान के बाद 1727 में हु वॉज द सक्सेसर? लेट मी टेल, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका. 1727 में आफ्टर मुर्शीद कुली खान फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, ही वॉज सक्सीडेड बाय सरफराज खान. ठीक है, सरफराज खान ने सक्सीड किया था. अब जब सरफराज खान ने सक्सीड किया था, ही वॉज किल्ड इन 1740 बाई अलीवर्दी खान. ठीक है, नाउ समझ में आ गया आपको, मुर्शीद कुली खान वॉज द फाउंडर. इसके बाद सरफराज खान वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, एंड आफ्टर किलिंग सरफराज खान इन द बैटल ऑफ घेरिया, अलीवर्दी खान he took as the control of the governor of Bihar. Understood? So who was killed in 1740? Sarfaraz Khan was killed. Okay. नेक्स्ट इज, नाउ अगर मैं बात करूं, अभी तो मैंने आपको इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात बता दी कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो थे, 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे हमारे मुगल से जो डायरेक्टली डिसइंटीग्रेट हुए थे. नाउ देयर वेयर सम स्टेट दैट वेयर न्यूली फॉर्म्ड. ठीक है, कुछ हमारे न्यूली फॉर्म्ड स्टेट भी थे, सच एज मैसूर.
सो द स्टेट ऑफ मैसूर किसने फाउंड किया था? इट वॉज फाउंड बाय हैदर अली। ठीक है, सो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस डील करेंगे आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ताकि आपका बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाए ऑन द स्पेक्ट्रम वाला पार्ट। ठीक है, हु इस्टेब्लिश द मैसूर स्टेट आफ्टर डिफीटिंग द वोडयार्स? सो इट वॉज फाउंडेड बाय हैदर अली। हैदर अली रूल्ड मैसूर बिफोर टीपू सुल्तान एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी। ठीक है, हैदर अली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज who established the independent kingdom of Travancore in Kerala? Now this was done by Martand Varma. ठीक है, what was the capital? So Travancore was the capital and his boundary extended from Kanyakumari to Cochin. ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो क्वेश्चन है त्रावणकोर मतलब what was the capital of the independent state of Kerala, ये त्रावणकोर इसकी कैपिटल है। दिस वॉज रिसेंटली आस्क्ड इन द CDS पेपर विच वॉज टेकन बाय UPSC। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब जमोरिन ऑफ कलकत्ता, लेट अस सी दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शंस आल्सो। जमोरिन ऑफ कलकत्ता, ये तो तब था व्हेन वास्को डे गामा केम। वास्को डे गामा कब आए? 1498 में। सूरजमल इज़ अ जाट लीडर एंड रंजीत सिंह इज़ अ सिख लीडर। सो यहाँ से भी आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इस किंगडम ऑफ त्रावणकोर में मलयालम लैंग्वेज वॉज पैट्रोनाइज्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हु फाउंडेड द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर एंड एक्सपेंडेड इट टू इट्स पीक? नाउ हु एक्सपेंडेड द जाट? अब लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द जाट किंगडम। नाउ टॉकिंग अबाउट द जाट किंगडम, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सूरजमल। ठीक है, नो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय चूड़ामन एंड बदन सिंह। ठीक है, दिस वॉज द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर। नाउ दिस जाट स्टेट रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सूरजमल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड व्हाट वेयर द एरियाज जहाँ पे ये जाट स्टेट ऑपरेट करता था? इट वॉज अराउंड द एरिया टेरिटरीज ऑफ गंगा, ठीक है, चंबल रिवर एंड सूबाज ऑफ आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, जो मॉडर्न डे ये एरियाज है हमारे, यहाँ पे दिस जाट स्टेट यूज टू एक्सटेंड। ठीक है, सो इट वॉज फाउंडेड बाय बदन सिंह एंड चूड़ामन। Ultimately, it was expanded to its peak during the tenure of Surajmal. ठीक है, Surajmal ruled over Agra, Mathura, Meerut and Aligarh region. ठीक है, next question देखते हैं। This question is about the Sikh Empire. Which Sikh leader transformed the community into a militant sect? Now this is an important question indeed. So this is known as the Khalsa Panth in Sikh religion. If we talk about, so the community from Sikh, the community was transformed into a militant sect by Guru Gobind Singh, who is also the 10th Guru of Sikhism. 10th Guru of Sikhism. And if I talk about who is the first Guru, so Guru Nanak Dev Ji is the first Guru. And for those who are preparing for the BPSC examination, they should know that Guru Gobind Singh, the 10th Sikh Guru, was born in Patna, which is in Bihar. ठीक है, is that understood? Now Guru Gobind Singh founded the Khalsa Panth in 1699 to defend the religious freedom. Okay, it is going to be the correct answer. Next is, who led the Sikh after Guru Gobind Singh and fought the Mughals? Now what happened in this Sikh religion and Sikh empire was Guru Gobind Singh founded and he made the Sikh sect as a warrior sect. After him, Banda Bahadur, ठीक है, assumed the leadership in 1708 and established the Sikh resistance. ठीक है, and after Banda Bahadur, it was talking in from the examination point of view, it was who? नाम मैं बोल रहा हूँ, Ranjit Singh, yes, Maharaja Ranjit Singh, who belonged to the Misl, Sukar Chakiya Misl. He integrated the Sikh empire and it formed the boundaries of the northwestern part of India. ठीक है, now next question उसी पे है, who unified the Sikh Misl and established the kingdom of Punjab? It was
Maharaja Ranjit Singh. And when Ranjit Singh used to rule in the Punjab, the boundaries extended till Srinagar. ठीक है, श्रीनगर तक बाउंड्री एक्सटेंड करती थी. ही कैप्चर्ड लाहौर इन 1799 एंड अमृतसर इन 1802. सो महाराजा रंजीत सिंह इज द करेक्ट आंसर. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, what treaty in 1838 allowed the British troops passage through Punjab? So, what was the name of treaty? Now, सबसे पहले let me tell you about this treaty. अगर मैं इस treaty की बात करूं, so this treaty was known as the Tripartite Treaty. Tripartite Treaty was there and it was signed in the year 1838. इसमें क्या था? This treaty was signed between Punjab, मतलब महाराजा रंजीत सिंह, then Shah Suja, who was in the area of Afghanistan, and the English. ठीक है, where Ranjit Singh agreed to provide the passage to the British troop through Punjab with a view of placing Shah Suja on the throne of Kabul. ठीक है, this was the tripartite treaty. ठीक है, let us read the question now. What treaty is in 1838 allowed the British troops passage through Punjab? So this was the tripartite treaty. Ranjit Singh allied with Shah Suja and the British to support Afghan ambitions. Okay, I hope कि this facts are clear now. ठीक है, all of these questions are very very important. Now next is, which regional power became prominent in Awadh after weakening of Mughal control post 1719? So it was the Nawabs of Awadh. Now what happened was, Saadat Khan was appointed as the Subedar of Awadh in 1722 and laid the foundation of a powerful Nawabi state exercising near complete autonomy under Mughal suzerainty. ठीक है, बंगाल तो हो नहीं सकता, अवध के रीजन में तो अवध ही होगा. ठीक है, एंड इट वॉज सादत खान हु एस्टैब्लिश्ड इट. नाम याद रखना, द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द नेम? सो बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क, एंड द थर्ड नेम इज मुर्शीद कुली खान. इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए. ठीक है, नाउ लेट अस नाउ मूव टू द मराठास. ठीक है, the Treaty of Purandar 1776 was signed between the British and which regional kingdom? So it was signed between English and the Marathas. Now what was basically this treaty? So this treaty was, it was signed with Raghunath Rao by Britisher but later repudiated in favor of Maratha leadership under Nana Fadnavis, reflecting internal factionalism within the मराठा पावर सेंटर. ठीक है, सो ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है. द डिटेल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बट हाँ, यू शुड नो मराठास के साथ साइन हुआ था एंड इट वाज साइंड इन द ईयर 1776. एंड तीसरा पॉइंट क्या है कि ब्रिटिशर्स साइंड दिस ट्रीटी विथ रघुनाथ राव. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, which ruler is credited with laying the foundation of Hyderabad state as an autonomous state in 1724? We have already seen this. This is Nizamul Mulk Asaf Jah. ठीक है, Asaf Jah I, originally a Mughal governor, broke away and established Hyderabad as a powerful Deccan kingdom, asserting independence while maintaining nominal ties with the Mughal emperor. Okay. Now next is, the Bengal Nawabi state emerged under the Mughal appointed revenue officer who was though it was Murshid Quli Khan. After that Sarfaraz Khan took place. ठीक है, Sarfaraz Khan became, and then he was killed in 1740 and then Ali Vardi Khan assumed the responsibility of the governor of Bihar. Which ruler represented the zenith of the Sikh Empire before its disintegration post 1849? So it was obviously Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh unified various Sikh missiles and created a powerful secular empire in Punjab. His death in 1839 led to succession conflict culminating in British annexation after the Second Anglo-Sikh War. ये जितने भी एंग्लो सिख वॉर है, ये सारा कुछ है, ये जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन है ना, ब्रिटिश वाला वो चैप्टर है जो जिसमें पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स वाली सारा उसमें डील किया गया है. सो दिस वी विल डील देयर ओनली. नेक्स्ट इज, नाउ नेक्स्ट इज
Who was the Mughal ruler during the Battle of Plassey? Now talking about Battle of Plassey, अब बैटल ऑफ प्लासी की हम बात करते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल. वाई? बिकॉज इट वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला, who was Nawab of Bengal, and the English army. Now the English army was led by Robert Clive. It was led by Robert Clive. ठीक है. Now Robert Clive and ultimately English emerged victorious in this and they won. मुगल रूलर कौन था उस टाइम पे? इट वॉज आलमगीर टू. ठीक है. एंड जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, एक हुआ था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में. हु वॉज द मुगल रूलर एम्परर एट दैट टाइम? इट वॉज शाह आलम टू. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. मुगल रूलर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी वॉज आलमगीर टू, एंड ये जो शाह आलम टू है ही वॉज देयर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है. Alamgir's two weak reign coincided with the major shift in Bengal under British influence. Next is about which Mughal ruler signed the Treaty of Allahabad with the East India Company. अब Treaty of Allahabad को बताने से पहले I would like to tell you about the Battle of Buxar. अब ये Battle of Buxar हुआ था 1764 में. बिटवीन थ्री पार्टीज एक साइड थी वर्सेस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एट अनदर साइड. मीर कासिम हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल. ठीक है. मुगल एम्परर शाह आलम टू वॉज ऑन द अदर साइड एंड देयर वॉज द नवाब ऑफ अवध ऑल्सो. और नवाब ऑफ अवध उस टाइम पे कौन था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. दिस इज़ अ वर्क फॉर यू. आप मुझे बताओगे, देखना आपको कितना याद है. नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात करूं, सो दिस वाज लेड बाय हेक्टर मनरो. एंड अल्टीमेटली हुआ क्या? ऑब्वियसली द ब्रिटिशर्स वॉन एंड आफ्टर दैट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड इन 1765. अब ऐसी दो ट्रीटी साइंड हुई थी और ये ट्रीटी साइन किसने करवाई थी? ये कराई थी रॉबर्ट क्लाइव ने. ये दो ट्रीटीज़ थी. एक ट्रीटी तो थी नवाब ऑफ अवध के साथ. अब वो कौन थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. सेकेंड जो ट्रीटी थी इट वाज डन विथ शाह आलम टू. ठीक है. हु वाज द एम्परर, मुगल एम्परर एट दैट टाइम. तो ये क्वेश्चन उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि विच मुगल रूलर साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. इट वाज शाह आलम टू. अब व्हाट डिड शाह आलम टू डिड? द ट्रीटी वाज साइंड इन 1765 विच गेव द कंपनी दीवानी राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है. समझ आ गया? सो दिस इज बेसिकली द फैक्ट. नाउ जो ट्रीटी नवाब ऑफ अवध के साथ साइन हुई थी उसमें ये था कि बनारस के राजा को उनका जो भी ज़मींदारी था दैट वाज टू बी रिटर्न्ड. इसके साथ में वार्ड आइडेंटिटी वाज आल्सो हैव टू बी पेड, सो दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड. ठीक है. सो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर. सो ऑब्वियसली लास्ट मुगल एम्परर कौन था? 1857 के टाइम पे देयर वाज रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. उस टाइम पे अ यूनिक फीचर वॉज सीन अबाउट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. कैसे? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में वहाँ पे ऐसे पता चला कि ऑल ऑफ द इंडियंस दे प्रोक्लेम्ड द मुगल एम्परर. जो थे उस टाइम पे सब लोगों ने ये माना कि हाँ हमारे राजा यही हैं. सो हु वॉज द राजा एट दैट टाइम? Bahadur Shah II was the Raja at that time. He was also known as Bahadur Shah Zafar. This was the another name of Bahadur Shah. ठीक है. So who was the last Mughal emperor? So Bahadur Shah was the last Mughal emperor. He was exiled after the revolt of 1807 and exiled कहाँ किया था? रंगून में. He was exiled to Rangoon. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं
Which kingdom was founded by Khilji Khan, that is Nizam ul Mulk? This was the state of Hyderabad. He became the first Asaf Jah in 1725 after defeating Mubarak Shah. नेक्स्ट है हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल? मुर्शीद कुली खान. सारे रिवीजन क्वेश्चन है. अब मेरे हिसाब से आप इसको भूलोगे नहीं. ठीक है. नाउ अब जो हमारा ये पॉइंट है, इसमें अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें वी आर गोइंग टू डील अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस टाइम पे. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आफ्टर व्हेन द ब्रिटिशर्स केम. ठीक है. अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, तो वन बाय वन लेट्स सी. अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के बारे में, स्पेसिफिकली अगर मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करूं, सो एग्रीकल्चर वाज वेरी मच बैकवर्ड. एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था, दिस तो ये सबको पता होगा. अगर मैं ट्रेड के बारे में बात करूं, एंड ट्रेड में भी स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट द इम्पोर्ट्स वाला पार्ट ना, तो इम्पोर्ट्स क्या क्या होता था, आइटम ऑफ इम्पोर्ट्स क्या क्या थे? पर्ल्स थे. ठीक है. सिल्क था, वुल, डेट्स एट्सेट्रा. कॉफ़ी हो गया, गोल्ड हो गया. चाइना से हम इंपोर्ट करते थे टी, शुगर, सिल्क. सो ऑल ऑफ दिस वाज द इम्पोर्टेड आइटम. बट फॉर यू टू नो, इंपोर्ट से ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट के आइटम पता होने चाहिए कि व्हाट वेयर्स द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम. सो एक्सपोर्ट के कौन कौन से आइटम थे? सबसे पहला तो कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल वाज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम. इसके अलावा मैं बात करूं रॉ सिल्क. रॉ सिल्क वाज अनदर आइटम. इसके अलावा मैं बात करूं इंडिगो, सॉल्ट पीटर. इसके अलावा मैं बात करूं ओपियम. अगर मैं ओपियम के अलावा बात करूं, सो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे, सच एज स्पाइसेस तो था ही था, ये तो पता ही होगा आपको. स्पाइसेस के अलावा प्रेशियस स्टोन्स, ऑल ऑफ दीज वेयर द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट. नाउ लेट अस रीड आवर क्वेश्चन कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. व्हाट टर्म वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडिया स्टेटस ड्यू टू इट्स वास्ट ट्रेड वेल्थ. ठीक है. अब इतने सारे मेटल्स थे, क्या बोला जाता था इंडिया को? इंडिया वाज नोन एज द सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स. इंडिया इंपोर्टेड वेरी लिटिल एंड अट्रैक्टेड गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया में स्पाइसेस थे, इंडिया में इंडिगो था, इंडिया में प्रेशियस स्टोन्स थे. सो ये सारे इकोनॉमिक वेल्थ के कारण ही तो यूरोपियन कंट्रीज आई थी. सो इंडिया वाज नोन एज द सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स. ठीक है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इट्स गिवन इन द स्पेक्ट्रम. नाउ नेक्स्ट इज, ये थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं. मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप एक बार देख लोगे तो यू विल गेट यूज टू व्हाट इज रिटन. फ्रॉम विच रीजन वेयर द पर्ल्स एंड डेट्स मेनली इम्पोर्टेड इनटू इंडिया. अब डेट्स क्या है? ये है खजूर. एंड अगर आपने थोड़ा सा भी अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो यू विल नो दैट ये मिडल ईस्ट के पोर्शन से आता है. ठीक है. जो पर्शियन गल्फ वाली कंट्रीज़ हैं. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्शियन गल्फ. अफ्रीका तिब्बत तो हो ही नहीं सकता. अरेबियन एंड पर्शियन गल्फ में आप कंफ्यूज कर सकते हो, बट पर्शियन गल्फ इज़ अ वाइडर टर्म एज कम्पेयर टू द अरेबियन वाला रीजन. ठीक है. सो पर्ल, डेट्स, वुल एंड रोज वाटर, इट केम प्रीडोमिनेटली फ्रॉम द पर्शियन गल्फ ट्रेडर. ओके, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच रीजन वॉज नोन फॉर एक्सपोर्टिंग आइवरी एंड ड्रग्स टू इंडिया. अब आइवरी किससे? आइवरी वॉज रिलेटेड टू एलिफेंट्स एंड ऑल. इट वॉज अ लग्जरी प्रोडक्ट. कहाँ से आता था? ये कहाँ पे होंगे? ये वहाँ पे होंगे जहाँ पे रेन फॉरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है. इन सारे ऑप्शन में से फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अफ्रीका में ही तो है. अफ्रीकन एलिफेंट का नाम भी सुना होगा आपने. सो दिस आइवरी एंड ड्रग्स टू इंडिया वेर एक्सपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट देखते हैं. कश्मीर वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर फॉर विच प्रोडक्शन ऑफ विच आइटम? सो वुलन मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है. Which coastal region were noted for flourishing shipbuilding in pre-colonial India? And this is an important question. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आज है कल है मुझे नहीं पता, बट दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन. आई एम डेड श्योर अबाउट दिस. ठीक है. सो
कौन से कोस्टल रीजन वे आर नोटेड फॉर फ्लरिशिंग शिप इंडस्ट्रीज इन प्री कॉलोनियल इंडिया? सो इट वाज बंगाल था, आंध्र प्रदेश था, महाराष्ट्र था, दीज ऑल वेयर द रीजन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सो शिप बिल्डिंग का काम कैलीकट में भी होता था। ठीक है, नाउ आपने एक नाम सुना होगा, मैंने बताया था जमोरिन के बारे में, जमोरिन ऑफ कैलीकट। नाउ ही यूज टू टेक द हेल्प ऑफ द मुस्लिम कुंजली Maraikers. These were a class of people who were involved in the shipbuilding. ठीक है, so Calicut was also very famous for this shipbuilding. Other than that, Bengal, Andhra Pradesh and Maharashtra were prominent centers. Next is, this is about the school and elementary education. जो भी school का education system होता था, this is related to that only. Now, what were the Hindu and Muslim elementary schools called? तो हिंदूज के जो स्कूल्स थे दैट वेयर नोन एज पाठशालाज, एंड जब मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल्स वेयर नोन एज मकतबाज। ठीक है, नाउ हिंदू के जो स्कूल्स होते थे दे वेयर ऑल्सो नोन एज चतुष्पाथीज एंड टोल्स। कौन से रीजन में? बिहार एंड बंगाल में इनको चतुपतीज एंड टोल्स बोला जाता था। ठीक है, सम ऑफ देम वेयर वेरी फेमस फॉर संस्कृत एडुकेशन। अब संस्कृत एडुकेशन के लिए कौन से फेमस थे? काशी इन वाराणसी ऑब्वियसली, तिरहुत वॉज ऑल्सो वेरी फेमस, तिरहुत इन मिथिला पार्ट ऑफ बिहार, देन नादिया, देन उत्कल इन दी ओडिशा। दीज वेयर दी वेरी फेमस सेंटर्स फॉर संस्कृत एडुकेशन। अदर देन दैट मदरसाज की मैं बात करूँ, मदरसाज वेयर वेरी फेमस फॉर हायर लर्निंग फॉर द पर्शियन as well as the Arabic language। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द BPSC एग्जामिनेशन, अजीमाबाद इन पटना, इट वाज वेरी फेमस फॉर पर्शियन लर्निंग। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? पाठशालाज एंड मकतबास। Now, which city was a major center for higher Persian learning? So it was Azimabad in Patna, was known for Persian scholarship and literature before British rule. I hope you have understood this. मैंने आपको इकोनॉमिक कंडीशन भी बता दी, मैंने आपको बता दिया अबाउट द एग्रीकल्चर ऑल्सो। लेट्स नॉट टॉक समथिंग अबाउट द आर्ट वाला फील्ड। ठीक है, आर्ट वाले फील्ड के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ, एंड देन स्ट्रेट अवे वी विल मूव टू द क्वेश्चंस। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्ट के सेक्शन में लखनऊ वॉज वेरी फेमस। लखनऊ इज स्टिल वेरी फेमस। वाई? फॉर इट्स बड़ा इमाम बारा। इट वॉज मेड इन द ईयर 1784 एंड हु मेड इट? इट वॉज मेड बाय असफुद्दौला। ठीक है, द नेम इज इम्पॉर्टेंट, सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस नाम को। ठीक है, इन एडिशन टू दैट Raja Savai Jai Singh, who is considered as the founder of the Pink City of Jaipur, he built 5 observatories। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ? तो दिल्ली में, उज्जैन में, बनारस में, मथुरा में। ठीक है, 1 2 दिल्ली हो गया, उज्जैन, बनारस, हाँ तो ऑब्वियसली जयपुर में भी एक था। ठीक है, सो 5 ऑब्जर्वेटरीज वेयर बिल्ड बाय हिम। ठीक है, उस टाइम पे कंचन नाम्बियार का नाम याद रखना। ही इज़ वेरी नोटेड मलयालम पोएट, ही वॉज अ नोटेड मलयालम पोएट एट दैट टाइम। ठीक है, इसके अलावा तमिल पोएट्री ऑल्सो फ्लरिश्ड। आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में बताऊं, विच इज़ नोन एज सितार पोएट्री, दिस वॉज ऑल्सो वेरी मच फेमस एट दैट टाइम। उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट द पंजाबी लिटरेचर, हीर रांझा वॉज अ वेरी फेमस पीस। इट वॉज रिटन बाय हु? इट वॉज रिटन बाय वारिस शाह, सॉरी। सो ये सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मिनिमम आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ हु बिल्ड द बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ इन 1784? So it was built by Asafuddaula
a major architectural achievement showcasing नवाबी patronage in अवध। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच राजपूत रूलर बिल्ट 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज अक्रॉस इंडिया, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आया भी हुआ है बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो। सो इट वॉज राजा सवाई जय सिंह। ठीक है, ऑब्जर्वेटरीज वेयर बिल्ट एट जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। ओके, 5 ऑब्जर्वेटरीज हैं, इन पांचों के पांचों का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हु कंपोज द पंजाबी रोमांटिक एपिक हीर रांझा। सो इट वॉज प्रोड्यूस बाय वारिस शाह। ठीक है, हीर रांझा रिमेन्स अ टाइमलेस क्लासिक इन पंजाबी लिटरेचर एंड फोकलोर एंड इट इज रिलेटेड टू वारिस शाह रोट इट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ये जो हमारा सेक्शन हो गया, दिस इज द पॉलिटिकल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर से ये रिलेटेड है चैप्टर, सो वी विल नॉट कंटिन्यू दिस लेक्चर आगे। आज हमने 2 चैप्टर्स किए हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आज हमने 2 चैप्टर्स किए हैं। सबसे पहला तो ये था हमारा कि सोशल कंडीशन क्या थी। ठीक है, एंड मुगल एम्पायर के डिक्लाइन, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद व्हाट वाज द कंडीशन दैट वाज प्रिवेलिंग। ओके, दिस वी हैव डन इन टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करना। 65 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं हमारे 700 क्वेश्चंस में से। ठीक है, पहला पार्ट देखना है तो यू कैन ऑल्सो गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से यू कैन वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑल्सो। So thank you for watching this video. PDF if you want to download, you can download from the pinned comment section, में आपको लिंक मिल जाएगा to download the PDF. So thank you for watching and keep studying.